Hello students, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. In my previous video, we have studied about electric potential and calculate its expression due to a point charge. And today we will calculate its expression due to a dipole. So let's start it. Here, AB is a dipole consists of two equal and opposite charge plus Q and minus Q separated by distance 2a. This O is the midpoint of AB. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस A और यहां से यहां तक का भी A. This P is the point where I want to calculate total potential due to this dipole और इस P का सेंटर से डिस्टेंस है R. ये है हमारा R. Suppose प्लस Q चार्ज का इस पॉइंट P से डिस्टेंस है R1 और माइनस Q का डिस्टेंस है R. और ये P पॉइंट डाइपोल के साथ एंगल बना रहा है थीटा. Now to calculate total potential at point P due to this dipole, first I have to calculate potential due to individual charge at this point. So potential due to plus Q charge at point P is 1 by 4 pi epsilon naught charge divided by distance R1. Similarly, potential at point P due to minus Q charge is 1 by 4 pi epsilon naught. अब यहां पे मैं चार्ज का साइन भी कंसीडर करूंगा, तो यहां पे आएगा माइनस Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R2. देन अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, total potential at P is algebraic sum of both these potential. So V plus Q is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R1 plus V minus Q is 1 by 4 pi epsilon naught minus Q by R2. This plus and minus क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस. अब 1 by 4 pi epsilon naught Q दोनों टर्म्स में से कॉमन, ब्रैकेट में आया 1 by R1 minus 1 by R2. यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे अब, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R2 minus R1 नीचे दोनों का प्रोडक्ट. Now this is in terms of R1 and R2, but I want my expression in terms of this distance R. So for this, here I will draw a perpendicular from A on OP like this. Similarly, B से perpendicular draw करेंगे OP पे like this. PO को थोड़ा सा extend करना होगा. अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. दिस इज AA dash and this is BP dash. So AA dash and BP dash are two perpendicular. Now in triangle AA dash O, this is your perpendicular, this is your base and this is your hypotenuse. So sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse, that is AA dash over AO, which is equal to small. तो यहां से AA dash की वैल्यू आई A sin theta, तो हमारा AA dash आया A sin theta. सिमिलरली अब cos theta, वो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस है हमारा A dash O और हाइपोटेन्यूज है हमारा स्मॉल. तो यहां से A dash O की वैल्यू आएगी A cos of theta, तो ये वैल्यू आ गई मेरी A cos theta. Similarly in triangle BB dash O, this is your base, this is your perpendicular and this is your hypotenuse.
So again, sine theta is perpendicular over hypotenuse, that is BB dash over A. तो यहां से BB dash आया हमारा A sin theta, and cos theta is base upon hypotenuse, that is OB dash divided by small a. तो यहां से OB dash आया हमारा A cos of theta. तो BB dash की वैल्यू आई A sin theta और OB dash की वैल्यू आई A cos of theta. Now if your dipole length is very small as compared to distance of this point P from the center, that means if R is very greater than A, then I will use an approximation here, that in a right angle triangle, if your base is very small, then hypotenuse is approximately equal to perpendicular. That means अगर राइट एंगल ट्रायंगल में आपका बेस बहुत ही छोटा हो तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल होंगे. नाउ लुक एट हियर इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश बी, दिस इज योर बेस ए साइन थीटा विच इज वेरी स्मॉल. क्योंकि ए बहुत ही स्मॉल है, हमने यही कंसीडर किया ना कि ए की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो ए बहुत ही स्मॉल है, इसका मतलब बेस बहुत ही छोटा है. Then using this approximation, hypotenuse, that is AP, is approximately equal to perpendicular, that is A dash P. Now AP is equal to R1 और A dash P की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? PO में से A dash O माइनस कर देंगे. PO की वैल्यू है R और OA डैश की वैल्यू है A cos थीटा. तो R1 की वैल्यू आई R minus A cos theta. Similarly, in triangle PB dash B, PB dash is equal to PB because इसका भी बेस क्या है? A sin theta, which is very small. तो यहाँ पे भी यही अप्रोक्सीमेशन लगेगी और I will get PB is equal to PB dash. PB is R2 और PB dash कैसे निकलेगा? PO plus OB dash. PO की वैल्यू है R और OB डैश की वैल्यू है A cos थीटा. तो R2 की वैल्यू आई R प्लस A cos थीटा. अब मैं इन दोनों की वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं. तो V की वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q. R2 इज R प्लस A cos थीटा माइनस R1 इज R माइनस A cos थीटा. नीचे दोनों का प्रोडक्ट. अब इसे जल्दी जल्दी फर्दर सॉल्व करते हैं. तो V आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस A cos थीटा. बाहर माइनस था तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे और नीचे R प्लस A cos थीटा और R माइनस A cos थीटा की जगह लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos थीटा. यूजिंग आइडेंटिटी A माइनस B A प्लस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. अब ये R के साथ R कैंसिल, तो यहाँ पे पोटेंशियल आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2 टाइम्स A cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. And Q into 2 is what? Dipole moment P. So V की वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos theta divided by R square minus A square cos square theta. Since R is greater than A, तो R square में से अगर A square cos square theta माइनस भी कर देंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली R square की इक्वली आ जाएगी. तो मैं यहां से इस टर्म को निगलेक्ट कर सकता हूं. पोटेंशियल मेरा आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos theta divided by R.
So this is your potential. In vector form, I can write it as 1 by 4 pi epsilon naught p cos theta की जगह p vector dot r cap divided by r square, where r cap is unit vector in the direction of this OP, इस direction में. अब चाहे आप इसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करके देखो, क्या इसका आंसर p cos थीटा आता है? तो p वेक्टर डॉट r कैप इज p का मैग्नीट्यूड, r कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन p एंड r. p इज योर डाइपोल मूवमेंट वेक्टर और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है -q2 + q. सो इन दिस डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट आपका इस डायरेक्शन में होगा और आर कैप इस डायरेक्शन में है. दोनों में एंगल कितना है? थीटा. तो यहां पे आएगा कॉस ऑफ थीटा. पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड p, आर इज योर यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1. यहां पे आ गया कॉस थीटा. यही तो था यहां पे. तो दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ पोटेंशियल. नाउ स्पेशल केसेस. First, when your point P is on equatorial line, like अब आपका P point इस लाइन पे, इक्वाटोरियल लाइन पे, तो इस केस में यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 90. और cos 90 कितना होता है? 0. तो पोटेंशियल देखो यहाँ पे cos थीटा है, थीटा की वैल्यू अगर 90 होगी तो पोटेंशियल कितना हो गया हमारा? 0. So potential is 0 at any point on the equatorial. Second, when point P is on axial line, like this, इस लाइन पे, यहां पे यहां पे, तो अगर पॉइंट यहां पे होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0. और अगर यहां पे हुआ तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 180. cos 0 होता है हमारा 1 और cos 180 होता है हमारा -1. तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी अब? +-1 by 4 pi epsilon naught p by r square. पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी जब पॉइंट आपका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव आएगी अगर पॉइंट आपका ऑपोजिट होगा डायरेक्शन. सो यहां पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. पॉजिटिव क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट O. पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस साइड, एंड A and B are 2 points in its electric field which is separated by very small distance, say dr. Suppose B पे potential है V due to this charge, तो A पे potential B से थोड़ा ज्यादा होगा because V is inversely proportional to distance. अब A पॉइंट का डिस्टेंस जो चार्ज प्लस Q से होगा वो B से तो थोड़ा कम ही होगा. That means A पे पोटेंशियल B से थोड़ा ज्यादा होगा. So suppose A पे पोटेंशियल है V plus dV, थोड़ा सा ज्यादा dV अमाउंट. Now if a test charge is placed at point B, then we know that when a charge is placed in an external electric field, it experiences force in the direction of electric field. तो इस पे लगेगी फोर्स F given by चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. याद है फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में किया था. तो अगर मुझे अब इस टेस्ट चार्ज को K की तरफ लेके आना है तो वर्क हैज टू बी डन ऑन दिस चार्ज अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस एक्सटर्नल फोर्स must be equal and opposite to this electrostatic force.
तभी तो इस टेस्ट चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगी और ये टेस्ट चार्ज बिना एक्सेलरेट किए बी से ए की तरफ आएगी। सो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आई माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी आर। अब दोनों ही इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी बी से ए और एक्सटर्नल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, तो इन दोनों में थीटा होगा 0। तो यहाँ पे आएगा एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ 0, क्योंकि थीटा 0। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसका, डॉट प्रोडक्ट करते समय यहाँ पे अब मैग्नीट्यूड आ जाता है ना, तो यहाँ पे भी मैं मैग्नीट्यूड ही लूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, डी आर cos 0 होता है 1। So this is your work done from B to A. Now by definition, potential difference between B and A is VA minus VB is equal to work done from B to A divided by test charge. पिछले लेक्चर में ये किया था हमने। अब ये WBA की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, नीचे Q नॉट के साथ Q नॉट कैंसिल, यहाँ पे VA और VB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पोटेंशियल एट A इज V प्लस dV माइनस पोटेंशियल एट B इज V। V के साथ V कैंसिल, सो dV इज इक्वल टू माइनस E dr और यहां से E की वैल्यू आई माइनस BV बाय dr। So this is your relation between electric field and potential. Now this term, which represent change in potential with distance, is known as potential gradient. So electric field is negative of potential gradient. This negative sign indicates that direction of electric field is in the decreasing direction of potential gradient. Which means जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में लगेगी। अब यहाँ पे देखो, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, तो आपका पोटेंशियल इस डायरेक्शन में कम हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इसी डायरेक्शन में। That's true according to this relation. So this equation represents us the relation between electric field and potential. That's all for today. Thank you for watching and please like and share my videos और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thank you.